బ్రహ్మాండ నాయకుని బ్రహ్మోత్సవం, బహురూపధారునికి బ్రహ్మోత్సవం, శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో, శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో, ఏడు కొండల పైన చక్కగా శ్రీ గురుభ్యో నమః. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః, సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద, ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ. నారాయణ పరబ్రహ్మ సర్వకారణ కారణం, ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ. సహస్రశీర్షా పురుషో వెంకటేశ శిరోవతు, వెంకటేశ శిరోవతు. ప్రాణేశ ప్రాణనిలయః ప్రాణాన్ పాలయ మే హరిః. ఆకాశరాట్సుతానాథో ఆత్మానం మే సదావతు. దేవదేవోత్తమః పాయాత్ దేహం మే వెంకటేశ్వరః, देहं मे वेंकटेश्वरः। प्रिय भक्तजनों, 7 पहाड़ों के ऊपर आसीन बालाजी भगवान को साल भर कई प्रकार के उत्सव मनाया जाने पर भी साल में एक बार मनाया जाने वाला ब्रह्मोत्सव ही तिरुमल इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इस वर्ष 2 बार ब्रह्मोत्सव मनाए गए हैं। विगत मास में जो ब्रह्मोत्सव मनाए गए हैं उनको वार्षिक ब्रह्मोत्सव सालकट्ल ब्रह्मोत्सव कहते हैं, और ये है नवरात्रि ब्रह्मोत्सव। आज बंगार तिरुचि में यानी बंगार एक पालकी में स्वर्ण भाग में भगवान जाते हैं। दशमुख मर्दन गोविंद गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। पक्षिवाहन गोविंद, पांडव प्रिय श्री गोविंद गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। मधुसूदन हरि गोविंद, महिम स्वरूप गोविंद गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। मत्स्यकूर्म गोविंद, वराह नृसिंह गोविंद गोविंद हरि गोविंद, गोकुल नंदन गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद, श्री वेंकटेश गोविंद। वामन भृगुराम गोविंद,
బలరామానుజ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వేణుగాన ప్రియ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద సీతానాయక గోవింద శ్రిత పరిపాలక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ ఆది మూలమే మాకు అంగరక్ష ఆది మూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష ఆది మూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష భూమిదేవి పతి అయిన పురుషోత్తముడే మాకు భూమిపై ఏడనున్న భూమి రక్ష భూమిదేవి పతి అయిన పురుషోత్తముడే మాకు భూమిపై ఏడనున్న భూమి రక్ష ఆమని జలధి సాయి అయిన దేవుడే మాకు సామీప్యమందున్న జలరక్ష ఆమని జలధి సాయి అయిన దేవుడే మాకు సామీప్యమందున్న జలరక్ష మాకు భూమి రక్ష మాకు జలరక్ష ఆది మూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మ్రోయుచు అగ్నిలో యజ్ఞమూర్తి అయిన దేవుడే ఆయములు దాకకుండా అగ్ని రక్ష మ్రోయుచు అగ్నిలో యజ్ఞమూర్తి అయిన దేవుడే ఆయములు దాకకుండా అగ్ని రక్ష వాయుసుతు నీలినట్టి వనజనాభుడే మాకు వాయువందు కందకుండా వాయురక్ష వాయుసుతు నీలినట్టి వనజనాభుడే మాకు వాయువందు కందకుండా
వాయురక్ష మాకు అగ్నిరక్ష మాకు వాయురక్ష ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష పాదమాకసమునకు పారజాచే విష్ణువే గాదిలియై మాకు ఆకాశ రక్ష పాదమాకసమునకు పారజాచే విష్ణువే గాదిలియై మాకు ఆకాశ రక్ష సాధించి వెంకటాద్రి సర్వేశ్వరుడే మాకు సాదరము మీరినట్టి సర్వరక్ష సాధించి వెంకటాద్రి సర్వేశ్వరుడే మాకు సాదరము మీరినట్టి సర్వరక్ష ఆకాశ రక్ష మాకు సర్వరక్ష ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష మాకు జీవరక్ష మాకు అంగరక్ష नमो वेंकटेशाय। हरे श्रीनिवास। प्रिय भक्तजनों, श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल द्वारा प्रसारित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। कल आपने देखा ब्रह्मोत्सव के पहले दिन शाम को अंकुरारोपण का कार्यक्रम बड़ी भव्य रीति से संपन्न हुआ और आज भगवान बालाजी अपनी दोनों पटरानियों के साथ तिरुच्ची वाहन पर पधार रहे हैं। तमिल में तिरुच्ची कहते हैं डोली को, डोली का दूसरा नाम है यहाँ तिरुच्ची। इसमें विराजमान होकर भगवान बाहर आ रहे हैं और यहाँ चारों ओर, मंदिर के चारों ओर जो वीथियाँ हैं इनको माड़ा वीथियाँ कहते हैं और भगवान बालाजी यहाँ आए हुए हैं। नंद नंदन गोविंदा, नवनीत चोरा गोविंदा, पशुपालक श्री गोविंदा, पाप विमोचन गोविंदा, दुष्ट संहार गोविंदा, दुरित निवारण गोविंदा, शिष्ट परिपालक गोविंदा, कष्ट निवारण गोविंदा, गोविंदा 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 हरि गोविंदा, गोकुल नंदन गोविंदा। श्रीकांताय कल्याण निधये निधेर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। आरती उतारी गई है। आप देखिए यहाँ अनेक भक्त यहाँ एकत्र हुए हैं। ये दोनों जो हैं बीच में, इनको जीयर कहते हैं। जीयर का अर्थ है महात्मा। ये दोनों सुबह से लेकर यानी रात तक वे अपना सारा समय भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में बिताते हैं और मंदिर के प्रबंधन में इनका भी हाथ होता है। यहाँ की जो सेवाएं होती हैं इनमें इन दोनों जीयर स्वामियों का कभी सहयोग मिलता है और प्रतिदिन यहाँ उत्सव होते हैं। प्रिय भक्तजनों, ये ब्रह्मोत्सव के बारे में कहा जाता है कि हजारों आंखें रहने पर भी, मतलब जितने भी हम देखें हमारी आंखें तृप्त नहीं होती, हमें आनंद नहीं मिलता और देखना चाहते हैं हम। और जितना भी हमारे पास
पांडित्य हो, शास्त्रों की जानकारी हो, भाषा पर अधिकार हो, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। मतलब ये हमारे मुंह से बाहर की बात है। और ब्रह्मोत्सव आप सबको भी आमंत्रित कर रहा है। कारण जो भी हो, इस वर्ष अगर आप ना आ पाए, ना आ सके, लेकिन अगले वर्ष आने के लिए ब्रह्मोत्सव आपको आमंत्रित करता है। और देखिए, ब्रह्मोत्सव अनेक देवी देवताओं को आमंत्रित करके हमारे समक्ष रखता है और सभी में गोविंद का दर्शन कराने वाला, अणु अणु में, कण कण में दिव्यता का आभास हमें दिखाने वाला और सभी प्राणियों को प्रसन्न रखने वाला है ये ब्रह्मोत्सव। और भक्तों को, भागवतों को, साधु संतों को और यहाँ तक कि अधिकारियों को, सेवकों को, अनेक प्रकार के लोगों को जिनमें आध्यात्मिकता होती है, जिनमें भक्ति भावना रहती है, सभी को अभी यहाँ आमंत्रित करते हैं भगवान जी अपनी महिमा से। और देखिए, एक तरफ आपको वेद सुनाई पड़ता है और दूसरी तरफ पाशुरम सुनाई देते हैं। तमिल में पाशुरम एक भक्ति गीत होते हैं। 12 यानी 12 आಳ್वारों ने जो पाशुरम गाए थे, ये भी हमें सुनने का सौभाग्य यहाँ मिलता है। और देखिए, भगवान का जो अलंकरण हुआ है बहुत ही सुंदर है। और यहाँ देखिए, भगवान बालाजी अपने दोनों चरणों को दिखाकर बताते हैं, मानो कि मेरी चरणों की शरण में आइए, शरणागति कीजिए। शरण का मतलब स्वयं को समर्पित कर देना और स्वयं को अकिंचन मानना, स्वयं को दास मानना और भगवान की सेवा में लगे रहना है। जब भी हम जो भी काम करते हैं, भगवान का नाम लेकर करने से हम ऐसा लगता है कि हम भगवान को ही हमने समर्पित किया है। ये आवश्यकता नहीं है कि हमेशा हम भगवान के सामने ही बैठें, पूजा पाठ करें, अर्चना आराधना करें। लेकिन जब भी हम सुबह उठते हैं और अपने अपने काम में जब हम लीन हो जाते हैं, उससे पहले यदि हम भगवान का नाम लें, भगवान को समर्पित करें, तो उसमें जो भी लाभ हो, जो भी नष्ट जो भी हो, सब भगवान को ही मानो समर्पित किए गए हैं। तो अर्थात हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कि तुम कर्म करो और फल मुझे छोड़ दो। प्रिय भक्तजनों, यहाँ आप जो देख रहे हैं यहाँ, और कितने ही भक्त यहाँ हैं, आज वे तिरुचि यानी डोल में बैठकर आए हैं। भक्तों का भक्तवन पुलकित होकर भाव विभोर हो रहे हैं। జనులు నమరులును జయలిడగా ఘనుడదే ఉయ్యాల కంభము కాడ. జనులు నమరులును జయలిడగా ఘనుడదే ఉయ్యాల కంభము కాడ. జనులు నమరులును జయలిడగా వలసిన వారికి వరములు ఎదురెదురైదానిచ్చుచును. వదలక వలసిన వారికి వరములు ఎదురెదురైదానిచ్చుచును. నిదురలేక తేను నిధి నిధానమై కదలడదే గరుడ గంభము కాడ. నిదురలేక తేను నిధి నిధానమై కదలడదే గరుడ గంభము కాడ. జనులు నమరు
వరములు ఓరంగ బ్రోదు నొసగుచును కోరిన వారికి కోరిన వరములు ఓరంగ బ్రోదు నొసగుచును చేరువయై కృప చేసిరివో ఊరిముల నడిమి గోపురమాడ చేరువయై కృప చేసిరివో ఊరిముల నడిమి గోపురమాడ జనులు నమరులును జయలిడక గరుడనే ఉయ్యాల కంభము కాడ జనులు నమరులును జయలిడక వడి వెంకటపతి వరముల రాయడు నుడుగ కాళ్ళు కన్నులు సుతుల వడి వెంకటపతి వరముల రాయడు నుడుగ కాళ్ళు కన్నులు సుతుల బడి బడి నొసగుచు ప్రాణాచారులకు కడిమిరీడ తిరుగని చకాడ బడి బడి నొసగుచు ప్రాణాచారులకు కడిమిరీడ తిరుగని చకాడ జనులు నమరులును జయలిడక గరుడనే ఉయ్యాల కంభము కాడ జనులు నమరులును జయలిడక ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आप लोग सोने का तिरुचि जो महोत्सव आज देख रहे हैं, आप सभी लोग एक बार जय बालाजी भगवान की जय, जय बालाजी भगवान की जय, जय बालाजी भगवान की जय। इस उत्सव में अतिरथ महारथ सामान्य असामान्य भक्तजन ऐसा भाग ले रहे हैं। आप तो भगवान की मूर्ति हैं और श्रीदेवी भूदेवी सहित अलंकार भूषित है। देखने में अब हमको इतना संतोष मिलता है कि वो तो वास्तव में ये संतोष को बोल नहीं सकते, मानसिक आनंद मिलता है। स्वामी के इतिहास में देखने से ये सप्तगिरी 7 पहाड़ों के बारे में आप लोग जानना बहुत आवश्यक है। 7 पहाड़ क्या है, इसके क्या क्या नाम है, उनके बारे में ज़रा देखेंगे। 7 कोंडल माने सप्ताचल बोलते हैं। सप्ताचल कहाँ हैं, उनके नाम क्या है, उनका नामकरण कैसे हुआ। सप्ताचल कहीं और नहीं बल्कि इन तिरुमल की श्रेणियों से उद्भुत पर्वत शिखर ही सप्ताचल है। माने ये तिरुमल जो श्रेणियां हैं उससे ही उद्भव हुआ जो सप्ताचल है। शेषाचलम है, वेंकटाचलम, नारायणाचलम, गरुड़ाचलम, वृषाचलम, वृषभाचलम, अंजनाचलम, यही इन पहाड़ों के नाम हैं। ये नाम अत्यंत सुंदर हैं। इनका नाम कैसे हुआ, इसका अब जानकारी लेंगे। शेषाचल पहला है, बहुत समय पूर्व सहस्र फनधारी आदिशेष और वायुदेव के बीच स्पर्धा उत्पन्न हुई। बातें बढ़ बढ़कर अंतिम परिणत
में दोनों अपने आप को मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा मान लिया और बाद में विवाद के रूप में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ कहते अपनी अपनी श्रेष्ठता मुखरित करने लगे। परिणाम स्वरूप आवेग में मन जोश में आकर आदिशेष ने इस प्रकार कहा, अगर तुम मुझसे श्रेष्ठ हो तो मुझे जरा हिलाकर तो देखो। ऐसे कहते हुए आदिशेष ने श्री वैकुंठ के श्री महाविष्णु के क्रीडाचल पर्वत को आवृत कर लिया, माने वो तो अपने वश में कर लिया। बस इस चुनौती का उत्तर वायुदेव ने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके उस पर्वत को आवृत करने वाला आदिशेष को हू कर फूंका। उसके फलस्वरूप पर्वत सहित आदिशेष इस प्रसू पर आ गिर पड़ा। अपने इस जो अपमान के शेषनाग सही नहीं पाया और कुंठित हुआ। श्रीमन्नारायण ने आदिशेष को प्रेम पूर्वक स्पर्श करते हुए कहा, हे शेषनाग, तुम लेश मात्र भी चिंता मत कर, मैं तुम्हें अपनी बाहुओं का आभूषण बनाकर नागाभरण के रूप में दर्शन दूंगा। इतना ही नहीं, आज से यह पर्वत तुम्हारे नाम से शेषाचल के रूप में प्रसिद्धि पाएगी। मैं भी शेषाचलपति के रूप में भक्तों से कहलवाऊंगा। ऐसा कहते हुए स्वामी ने शेषनाग को सांत्वना दी है। शेषनाग भी तृप्त हुए। उस दिन से यह शेषाचलम शेषाद्रि के रूप से भाषित हैं। यही पहला पर्वत है। आप लोग देख रहे जो हाथी शुभ के लिए सूचक है। माने भगवान भोग श्रीनिवास भी कहते हैं। अलंकार सहित अनेक आभूषणों का रत्न सोने से जड़े हुए आभूषण हैं। आभूषण को धारण करके हमारे जैसे भक्तजनों को ऐसा दर्शन दे रहे। स्वामी के जो कृपा की वजह से हमारा जन्म चरितार्थ होता है। मैंने दूसरे जो पर्वत के बारे में जानकारी लेंगे, वेंकटाचलम। दूसरा पर्वत वेंकटाचल है। वेम का अर्थ समस्त पापों का कटह भस्म करने वाला, अर्थात वेंकटाचलम का अर्थ समस्त पापों को भस्म करने वाला है। भयंकर दावानल में थोड़ी सी रुई गिरने से पहले जिस भांति उसके ताप मात्र से जलकर भस्म होकर बिखर जाता है, उसी प्रकार इस पर्वत को छूने मात्र से समस्त पाप धुल जाते हैं। इसलिए वह वेंकट हैं और वेंकटाचलम है। इतना ही नहीं, वेंकटो वेंखारो मृथा बीजस्तु कटमैश्वर्य मुच्युते अमृतैश्वर्य संगत्वा वेंकटाद्रिरिति स्मृतिः। वेंकटाचल पुराण में उसके बारे में ऐसा कहा गया। वे मने అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక
మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు ఒసగుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, వెళ్ళి చింతపంటి వల్లే వృధా వృధా. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఓలినెంత జారిపడ్డా నూరకే ఎవ్వరికైనా నేలే ఆధారమై నిలుచుగాక. ఓలినెంత జారిపడ్డా నూరకే ఎవ్వరికైనా నేలే ఆధారమై నిలుచుగాక. తాలిమి శ్రీ వెంకటేశు తలచక తలచిన, తాలిమి శ్రీ వెంకటేశు తలచక తలచిన, పాలించనాతడే కాక పరులకు వశమా. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు ఒసగుగాక. नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, मीनाकृते कमठकोल नृसिंहवन्निन् स्वामिन् परश्वत तपोधन रामचंद्र शेषांश राम यदुनंदन कल्कि रूप श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमन्कृपाजलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ सक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान के नाम में अत्यंत महिमा है। नाम के समान कोई नहीं है। एक एक युग में एक एक साधन द्वारा भक्त तर गए थे।
कृतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में यज्ञ या अर्चना, इस तरह अलग अलग पद्धतियों को अपनाकर भक्त तर गए। जबकि कलयुग में हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नाम जप करने से, नाम स्मरण से ही हम तर जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में माता पार्वती ने जब परमशिव से पूछा था, केनोपायेन लघुना विष्णोर नाम सहस्रकम पच्यते पंडिते नित्यम श्रुतिमिच्छामि हम प्रभो। हे प्रभो, कृपया ये बताइए कौन सा नाम हमारे लिए मतलब जब लेते हैं हम तर जाते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम के लिए समान है। कलयुग में किसी समय कम रहता है लोगों के पास, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि विष्णु सहस्त्र नाम पूरा आसानी से पढ़ सकें। तब परमशिव कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम का नाम अगर हम 3 बार कहें तो विष्णु सहस्त्र नाम के समान हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, भगवान राम हो या कृष्ण या कलो वेंकट नायक वेंकटेश्वर बालाजी, तीनों एक ही मूर्ति के 3 भिन्न रूप हैं। अलग अलग अवस्थाओं में उन्होंने अलग अलग रूप धारण किया है। कलो वेंकट नायक, कलयुग में वही शक्ति वेंकट नायक बनकर, बालाजी बनकर हमारे समक्ष प्रत्यक्ष हुई है। कितने ही लोग युग युगों से यहाँ आकर तर गए हैं। आपको शंका आई होगी कि भगवान तो सर्वव्यापी है, लेकिन मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, या मूर्ति की पूजा करने से क्या लाभ है? क्या भगवान वहीं विद्यमान है, वहीं रहते हैं? प्रिय भक्तजनों, ये तो सही है कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन मंदिर एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ मंत्र रहते हैं, तंत्र रहते हैं, वातावरण पवित्र रहता है, घंटानाद होता है और विभिन्न भक्त आते हैं, वहाँ स्तोत्र पढ़ते हैं। वातावरण वहाँ जो रहता है बड़ा पवित्र होता है। इसलिए मंदिर में जाना, मंदिर में बैठना और भगवान का दर्शन करना, ये सभी बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि हमारे मन को शांति मिलती है। युग युगों से आए थे। तिरुपति की क्या विशेषता है, तिरुमला की, यही क्यों लोग बड़ी संख्या में क्यों आते हैं? फिर भक्तजनों, यह तो सही है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी है, लेकिन तिरुमला की विशेषता ऐसी है कि यहाँ भगवान स्वयंभू हैं, अपने आप व्यक्त हुए हैं, सालग्राम स्वरूप हैं, और युग युगों से यहाँ अनेक महात्मा लोग पधारे हैं। एक तो भगवान में विशेषता है, दूसरा अनेकों साधु सन्यासी संत महंत यहाँ आकर उन्होंने दर्शन किया, सेवाएं समर्पित की हैं और मंगलाशासन किया है, आरती उतारी है। इस कारण इन भक्तों के, इन भागवतों के कारण, इनके द्वारा मंगलाशासन दिए जाने के कारण ये प्रसिद्ध है। श्री वैष्णव सिद्धांत में 108 दिव्य देशम कहते हैं, उनमें तिरुमला एक है। और जो भक्त तर गए थे उनमें आಳ್वार हैं, आಳ್वार कुल 12 हैं भक्तजनों। वे हैं पोहे आಳ್वार, पूदत्त आಳ್वार, पेय आಳ್वार, तिरुमलशी आಳ್वार और नम्मा आಳ್वार, कुलशेखर आಳ್वार, पेरियाಳ್वार, तोंडरडिप्पड़ी आಳ್वार, तिरुप्पाणी आಳ್वार, तिरुमंगे आಳ್वार और अंत में आंडाल हैं। दक्षिण की मीरा कही जाती है, आंडाल हैं। ये नाम मैंने इसलिए पढ़े कि भले ही भाषा आपके लिए नई हो, आप मंत्र या कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन उनमें महिमा होती है। श्रवण से, सुनने से हमें लाभ होता है। इनमें कुलशेखर जो नाम है, भगवान के मंदिर में यहाँ जो देहली जो होती है, वहाँ देहली है, वहाँ उसको भक्त कुलशेखर ही कहते हैं, कुलशेखर पड़ी कहते हैं। एक महान राजा थे कुलशेखर जी, जिन्होंने भगवान से एक वर मांगा था कि वे अपने अगले जन्म में भगवान के समक्ष देहली बनकर रहें। आज भी हम उनका दर्शन कर सकते हैं। और इन 12 आಳ್वारों में आंडाल एकमात्र महिला है। दक्षिण की मीराबाई जैसी है, वैसे ही इन्हें दक्षिण देश में तमिलनाडु में ये पैदा हुई और इन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया, बालाजी भगवान को। जय श्रीमन नारायण। नमो बालाजी भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय। నేను చెప్తాను
नवमं नवरत्नं च ब्रह्मा च कमलासनः निधिः ग्रहा च कंडं चारंध्रो भवा च लब्धकः। नवमं नवरत्नं ब्रह्मा कमलासनः निधिः ग्रहः कंडः रंध्रः भावः लब्धकः। ये 10 नाम 9 संख्या के सूचक शब्द हैं। इसलिए ब्रह्मा शब्द नवब्रह्म के अनुसार 9 संख्याओं को सूचित करता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के महोत्सव ब्रह्मा के द्वारा ध्वजारोहण से लेकर ध्वजावरोहण तक 9 दिनों के लिए मनाया गया। 9 दिनों के लिए कराए जाने वाले इस महोत्सव को ब्रह्मोत्सव के रूप में श्रेय मिला। 9 दिनों के लिए मनाए जाने वाले महोत्सव को ब्रह्मोत्सव जैसा सार्थक नाम ऐसा मिला था। आप देख रहे हैं भगवान के जो पहला द्वार है उसके जो शिखर है। माने आप लोग जो भगवान के दर्शन के लिए आते रहते हैं, दर्शन करने वाले भक्तजनों में जाति को नहीं देखते हैं, अनेक जाति के लोग आते रहते हैं। इससे संबंधित एक दोहा सुनिए। जात ना पूछो साधुओं की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवारी का पड़ा रहने दो ज्ञान। ज्ञान के विषय में माने कोई भी ज्ञान का जो अर्जन कर सकते हैं। माने साधु से पूछिए आप लोग ज्ञान से हमारा मतलब है। और जो साधु हो कोई भी हो, जो ज्ञान जो पंडित है, जो ज्ञान का अर्जित किया है, उसी से हम ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। वैसे ही जो भगवान के प्रति, भगवान और भक्त के प्रति आध्यात्मिकता होनी चाहिए। माने भगवान के प्रति हम क्यों ऐसा जो मंदिर में जाते हैं, माने शांति के लिए और आत्मा को साक्षात्कार करने के लिए, आत्मा के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसा करते हैं। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माहे, मनुआ तो 10 दिस फिरे यह तो सुमिरन ना है। माने माला तो कर में ऐसा फिरते रहते, हाथ में फिरते रहते हैं, माने जीव मुंह में ऐसा फिरते रहते हैं, लेकिन मनुआ तो 10 दिशाओं में फिरते रहते हैं। यह तो सच्चा स्मरण नहीं है। अब सच्चा स्मरण के लिए घर बैठे हुए एकाग्रता रहना चाहिए। एकाग्रता की वजह से जो कुछ चाहिए वो कर सकते हैं। भगवान वेंकटेश्वर है, बालाजी बोलते हैं। बालाजी भगवान के लिए अनेक उत्सव साल भर में मनाए जा रहे हैं। उन्हीं में वार्षिक ब्रह्मोत्सव ही श्रेष्ठ के रूप में ऐसा मनाए जाते हैं। माने भगवान वेंकटेश्वर को श्रीनिवास, बालाजी, जनार्दन ऐसे कई नामों से बुलाया जाता है। भक्तों के जो कष्टों को हरण करने वाले जो आफत बांधव भी ऐसा बुलाया जाता है। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर है। भक्तजनों को कटाक्ष करने के लिए पृथ्वी पर वेंकटेश्वर जी पधारे हैं। निर्धारित मास, तिथि और नक्षत्र के अनुसार भगवान बालाजी के लिए जो उत्सव मनाते हैं उसे वार्षिकोत्सव या कालोत्सव नाम से बुलाया जाता है। चैत्र मास में वसंतोत्सव, ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము, ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము, వేడే మూలిందరో విభవము నేడు, వేడే మూలిందరో విభవము నేడు, ఆడ
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ముడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ముడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము అప్సరో గణము श्री गुरुभ्यो नमः। प्रिय भक्तजनों, वेंकटेश पाहि मां श्रीनिवास रक्ष मां, वेंकटेश पाहि मां श्रीनिवास रक्ष मां। आप जो भक्ति चैनल में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनके माथे पर देखा होगा तिलक है, तिरुनामम कहते हैं। यहाँ जितने भी भक्त हैं, भागवत हैं, सेवक हैं, सभी के माथे पर यह चिन्ह है।
श्री वैष्णवों का चिन्ह है ये। सफेद जो है उसको तिरुमणि कहते हैं, और बीच में या तो लाल रेखा रहती है या कस्तूरी का काला रंग में एक रेखा रहती है। वो सफेद जो है उजले रंग में जो है वो सत्वगुण का प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है। वो बीच में जो लाल है माता लक्ष्मी का, और वे विश्व शांति के लिए हैं। भगवान, प्रकृति और माता तीनों का है। प्रिय भक्तजनों, वैसे तो हमें भी तीन तीन नाम होते हैं। एक नाम है अपने माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार अच्छा नाम चुनकर जो हमें रखते हैं, वह एक नाम है। और दूसरा अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, पद्धतियों के अनुसार हम जो तिलक लगाते हैं वे वही एक है। ये दोनों तो आवश्यक है ही, लेकिन भगवान का नाम जो तीसरा नाम है अगर हम जीव पर रखें तो वो असली नाम है। 24 घंटे अगर हम भगवान का नाम लेकर काम करते रहें तो समझिए भगवान की कृपा आप पर रहती है। और कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणि दीप धरु जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से उजियार। जो भक्त अपने भीतर और बाहर, अपने मन में और अपने चारों ओर वातावरण को पवित्र बनाना चाहता है तो उसे जीव रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणिदीप रखें तो उसका प्रकाश मन के भीतर यानी अंतर्मन में और बाहर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार देहली पर रखे हुए दीप का प्रकाश चारों ओर फैलता है, उसी प्रकार जब हम राम नाम लेते हैं तो उसका प्रभाव एक तो हम तो पवित्र बन जाते हैं और चारों ओर का माहौल भी पवित्र बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, वाहनों का उपयोग ब्रह्मोत्सव में 15वीं शती के पूर्व का न होगा, क्योंकि 10वीं शती में एक छोटा सा काष्ठ निर्मित डोली के आकार का एक वाहन ही था। अभी आप देखें, इसको तिरुच्ची कहते हैं, जिसको हमने पालकिन कहते हैं या डोली उत्सव है। प्रिय भक्तजन सभी उठाकर ले जा रहे हैं और भगवान भी अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। ये देख रहे हैं इनमें कितने ऐसे भक्त हैं जो सचमुच मेरी शरण में आते हैं या कहते हैं मुझे आपने जो कुछ दिया है वह मेरे लिए पर्याप्त है, और कृपया आपकी कृपा उन भक्तों पर डालिए जो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सके। किसी कारणवश अपने घर में ही बैठकर वे भक्ति चैनल द्वारा आपका दर्शन कर रहे हैं उत्सवों का, या किसी अन्य कारण से वे तैयारी करके भी नहीं आ सके, ऐसे भक्तजनों पर भी कृपा दृष्टि रखिए। तो इस तरह देखते हैं, देखिए। और 1530 ईस्वी तक गरुड़ वाहन का उपयोग प्राप्त नहीं है, शेष वाहन का काल अभी तक भी स्थिर नहीं है। और इस तरह वाहनों का प्रयोग अलग अलग पशु और पक्षियों का हम ब्रह्मोत्सव में देखते हैं। देखिए, गजराज हैं, भगवान की सेवा में हाथी भी हैं और उनके माथे पर भी बहुत ही सुंदर तिलक लगाया हुआ है, बहुत ही आकर्षक है। भगवान के समर्पित एक गजराजों का आशीर्वाद लेते हैं भक्तजन। जय श्रीमन नारायण। ఈ మాట విన్నవించరే, ఈ మాట విన్నవించరే, ఇంతులాల విభునికి భీమసపు నా గుణము తెలియదా మీకు? ఈ మాట విన్నవించరే, ఇంతులాల విభునికి భీమసపు నా గుణము తెలియదా మీకు?
వద్దు గాని పరకాంతలనింటికి వాసి తోడ తెచ్చుకుంటే వలదనేనా వాస తప్పవద్దు గాని పరకాంతలనింటికి వాసి తోడ తెచ్చుకుంటే వలదనేనా ఆశ కొల్పవద్దు గాని అక్కడ దానెటువలే ఆశ కొల్పవద్దు గాని అక్కడ దానెటువలే వేసాలన్నీ చేసిన వెంగి మాడేనా ఈ మాట ఈ మాట ఈ మాట విన్నవించరే పంతమాడవద్దు గాని భావించిన మేలెరిగి ఎంత నాతో నవ్వినా నేటికనేనా పంతమాడవద్దు గాని భావించిన మేలెరిగి ఎంత నాతో నవ్వినా నేటికనేనా వింత సేయవద్దు గాని వేడుక కాడవై ఇట్లు వింత సేయవద్దు గాని వేడుక కాడవై ఇట్లు సంతోషాన తిరిగిన సాధించేనా ఈ మాట ఈ మాట ఈ మాట విన్నవించరే జోలి పెట్టవద్దు గాని చోటిచ్చి పానుపు మీద ఏలాగున గూడిన ఎమ్మెలాడేనా జోలి పెట్టవద్దు గాని చోటిచ్చి పానుపు మీద ఏలాగున గూడిన ఎమ్మెలాడేనా వేళ తోడ నన్నును శ్రీ వెంకటేశుడిది కోడి వేళ తోడ నన్నును శ్రీ వెంకటేశుడిది కోడి మేలములెన్ని ఆడిన మితి మీరేనా ఈ మాట ఈ మాట ఈ మాట ఈ మాట పాండవ ప్రియ శ్రీ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద మహిమ స్వరూప గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద మత్స్యకూర్మ గోవింద వరాహ నృసింహ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వామన భృగురామ గోవింద బలరామానుజ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల
నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద వేణుగాన ప్రియ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద సీతానాయక గోవింద శ్రిత పరిపాలక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద
Thank you.